2019 ચૂંટણી આવી રહી છે। વચગાળાનું બજેટ જે છે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી। તમામ વર્ગોને ખુશ રાખવાનો પ્રયત્ન તો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ બાબતને લઈને સુરતની જનતા શું મત વ્યક્ત કરી રહ્યા છે તેને લઈને જઈએ સીધા સુરત, જ્યાંથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આખરે આ બજેટને લઈને સુરતની જનતાનું શું છે કહેવું। ડાયમંડ અને સિલ્ક સિટી તરીકે ઓળખાતા સુરતના વેપારીઓ સાથે સીધા વાત કરીએ કે તેમને બજેટમાં જે અપેક્ષાઓ હતી કેટલી અપેક્ષા પૂર્ણ થઈ છે। સૌથી પહેલા આપણું નામ જાણવા માંગીએ। નૈનેશ પચ્ચીકર। નૈનેશભાઈ, જે રીતે બજેટ આવ્યું છે વેપારી તરીકે કેટલી આશા સફળ રહી, નિરાશા હતી? કેન્દ્ર સરકારનું વચગાળાનું બજેટ, અંતરિમ બજેટ જે આવ્યું છે એમાં જે ટેક્સ પેયરો માટેની જે રાહતો આપી છે એને લીધે જે વેપારી વર્ગને 100% ફાયદો થશે અને નાના જે મધ્યમકારોને ફાયદો થશે। પણ જે અમારી જેમ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરની જે માંગણીઓ હતી કે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 10%થી ઘટાડીને 4% કરવામાં આવે, તે હજી સુધી એમને પૂર્ણ નથી થઈ અને હવે જે નવું એમનું જે બજેટ આવશે તેમાં અમે આશા રાખીએ છીએ કે એમાં એ ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઘટાડવામાં આવે અને જે ટેક્સ પેયર માટેની જે રાહતો થઈ છે ને જે સિનિયર સિટીઝન માટેની જે રાહત થઈ છે એને લીધે દરેક બિઝનેસને 100% ફાયદો થશે એવી આશા છે। ચોક્કસ આપણી જોડે અન્ય એક વેપારી જોડે આપણે એમની જોડે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। શું નામ છે? ફિરોઝ વાઘ બકરીવાળા। વિનોદભાઈ, જે રીતનું બજેટ હતું કેટલી આશા સફળ રહી? જેટલો પબ્લિકને ફાયદો થયો છે એના કરતાં ફાયદો ડબલ સરકારને થાય એમ છે, કારણ કે જે 2.5 લાખના 5 લાખ કરવામાં આવ્યા છે તે એક બહુ મોટી સિદ્ધિ છે, પરંતુ પબ્લિકને જે ડબલ કર્યા છે તેમ જીએસટી ઇન્કમ પણ ડબલ થશે એ 100% ખાતરી છે જ। કારણ કે આપણે એક જ વસ્તુ કયા કરતા હતા કે ભારત દેશની અંદર 10% જ વ્હાઇટ મની છે અને 90% બ્લેક મની છે। હવે વ્હાઇટ મની વધશે એકદમ સ્પીડમાં અને એનાથી જીએસટીની વ્હાઇટ બિઝનેસ થશે તો સારો દેશનો વિકાસ થશે। ચોક્કસ આપણી જોડે રૂબીનભાઈ જોડાયા છે। રૂબીનભાઈ, બજેટમાં જે આશાઓ હતી કેટલી આશાઓ વેપારીઓને સફળ થઈ છે? કારણ કે જીએસટીને લઈને સુરતનો કાપડ ઉદ્યોગ કે ડાયમંડ ઉદ્યોગ ઘણા લાંબા સમયથી ચિંતામાં હતું। મને એમ લાગે છે કે જીએસટીની વાત આપણે આ બજેટમાંથી કોઈ અપેક્ષા રાખી ન શકીએ, કારણ કે જીએસટીને માટે જીએસટી કાઉન્સિલ અલગ છે અને એ જીએસટી કાઉન્સિલ દર મહિને મળે છે, એટલે એમ કહી શકાય કે જીએસટી માટેનું બજેટ તો દર મહિને આવે છે। તમે જોયું હશે કે છેલ્લા કેટલા મહિનાથી જીએસટી કાઉન્સિલ દર મહિને મળે છે અને આપણે ત્યાં પણ જે કંઈ પણ જીએસટીના રેટ તે બી ઘટાડવામાં આવ્યા છે, એન્યુઅલ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટેનું પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે। એટલે હજુ પણ જે ટેક્સટાઇલ અથવા તો ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને જે કંઈ પ્રશ્નો હોય જીએસટીના હોય તે જીએસટી કાઉન્સિલ સમક્ષ મૂકશે તો ચોક્કસ જ મને ખાતરી છે કે જીએસટી કાઉન્સિલ એ તરફ ધ્યાન આપીને એમના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવશે। જ્યાં સુધી આ બજેટનો સવાલ છે, હું માનું છું આ સર્વાંગી વિકાસનું બજેટ છે। આ બજેટમાં આટલી બધી મર્યાદાઓની વચ્ચે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર જે આ બજેટ આપ્યું છે તે અદ્ભુત બજેટ છે, કારણ કે છેલ્લા ઘણા વખતથી આપણને એમ હતું કે 2.5 લાખની લિમિટ 5 લાખ થવી જોઈએ, આજે એમણે કરી બતાવી છે અને 5 લાખ સુધી કોઈ ટેક્સ નથી આપવાનો। એ રીતે ટીડીએસમાં 10,000ની જે મર્યાદા હતી તે વધારીને 40 લાખ કરવામાં આવી છે અને રેન્ટમાં 1,80,000 જે હતું તે 2,40,000 કરવામાં આવ્યું છે। આ બધી વાતો એ ચોક્કસ જ આપણા મધ્યમ વર્ગને અસર કરતી વાતો છે અને મધ્યમ વર્ગના માણસો જે લગભગ 6 કરોડ લોકો આ ટેક્સ નેટ નીચે અત્યારે આવેલા છે એ 6 કરોડ લોકોને ચોક્કસ લાભ થવાનો છે। એટલું નહીં, આ બજેટ ખેડૂતોને બહુ મોટો વિકાસ તરફ દોરી જનારું છે। આ બજેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ તરફ દોરી જનારું છે। આ બજેટ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવનારા એટલે બિલ્ડરો છે એ બિલ્ડરો માટે પણ જે એમણે પ્રોવિઝન કર્યું કે એમનું જે કંઈ પણ ફ્લેટ બનાવ્યો હોય ને એ પડી રહ્યું હોય તો એના પર નોશનલ રેન્ટ ગણવામાં આવતું હતું, તે 2 વર્ષ સુધી ન ગણવામાં આવે। એને કારણે મને એમ લાગે છે બિલ્ડરોને પણ રાહત થશે અને એ લોકો પોતે જે કંઈ પણ બિલ્ડિંગ कंस्ट्रक्शन करे और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट। देश के बहुत बड़े वर्ग को, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट रहा है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो किसान के पास है वो देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा।
दो हजार की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा और इसके कारण सरकार करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय दोगुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है। बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं। देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते। करीब करीब 50% किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं, उनको तक भी ये फायदा पहुंचेगा और ये फायदा हर साल पहुंचेगा। ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी। तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहायता देने की ये योजना देश के हर गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत, उनको इनपुट्स के लिए, किसान को खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत मददरूप होगी। इसके साथ कामधेनु संवर्धन आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने गौ संवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण करना, अनेक विध गौ संवर्धन के उद्देश्यों को एक कामधेनु संवर्धन आयोग पूर्ण करने में सहायता करेगा। और हमारी सनातन संस्कृति में चाहे पूज्य बापू हो या विनोबा भावे, सबने गाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में, हमारे अर्थ जीवन में स्वीकारा है और प्रधानमंत्री जी ने कामधेनु संवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड में समय पर भुगतान करने पर कुल 2 और 3 ऐसे 5% की रियायत देकर एक बहुत बड़ी और राहत समय पर भुगतान करने वाले किसानों को दी है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मछुआराओं के कल्याण के लिए ये मत्स्य पालन विभाग अब सीधी कामगिरी करेगा। इससे मछुआरों का कल्याण करने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये का पेंशन, जिसमें उनके जितना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी रियायत देने वाला है। छोटा सा ठेला चलाने वाला, पग रिक्शा चलाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले, खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की वृद्धावस्था में ये 3 रुपया उनकी वृद्धावस्था को पार करने में बहुत सहायता करेगा। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता दोनों को बढ़ाकर एक बड़ी राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। घुमंतु समुदाय के लिए भी एक आयोग बनाकर घुमंती जातियों के कल्याण के लिए अब सीधा काम करने का एक जरिया भारत सरकार ने इस बजट में शुरू किया है। मैं मानता हूं कि घुमंतु जातियों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख गांवों को डिजिटल करने का जो फैसला लिया है, उससे गांवों के अंदर रोजगारी भी बढ़ेगी
गांव और शहर का अंतर भी कम होगा, गांव की शिक्षा में भी सुधार होगा, गांव के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में, ये गांव को डिजिटल करने का जो फैसला लिया गया है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को पार्टी की ओर से बधाई देते हैं। मित्रों, भारत की आजाद होने के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। सबसे बड़ी राशि इस बजट के अंदर प्रोवाइड की गई। प्रधानमंत्री जी ने यह कर देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन और ये रिकॉर्ड राशि बजट के अंदर जो प्रोवाइड करी है, इसके माध्यम से देश की रक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पहले दिन से सरकार कटिबद्ध है। रेल के नक्शे पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लाए हैं, एयरपोर्ट के नक्शे पर, हवाई नागरिक उड्डयन के नक्शे पर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को लाने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के बजट में 21% की वृद्धि, ये आज तक की सबसे बड़ी बजटरी वृद्धि है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति कमिटमेंट को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर से प्रस्तापित कर सत्यापित किया है। उज्ज्वला योजना ने अब तक 6 करोड़ गरीब महिलाओं को, उनकी रसोई को, उनके घर को धुएं से मुक्त करने में एक बहुत बड़ी राहत दी और ये योजना को आगे बढ़ाकर 8 करोड़ तक का लक्ष्य रखकर देश के करीब करीब 80% से ज्यादा घरों के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। मैं मानता हूं कि देश की गरीब महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। देश के मध्यम वर्ग के लिए ढेर सारी रियायत इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर आए। सबसे पहले 2.5 लाख तक की आयकर की सीमा को सीधा डबल कर 5 लाख तक की सभी आय को आयकर से मुक्त करने का काम कर देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है और मैं मानता हूं मध्यम वर्ग जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता था, उससे कुछ ज्यादा ही प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग का समर्थन करने का काम किया है। और जो निवेश कर पाएंगे, निवेश करना चाहते हैं, ऐसे सभी करदाताओं को अब 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो एक प्रकार से निवेश जो कर पाएंगे उनके लिए आयकर की मर्यादा 6.5 लाख तक की हुई है और जो निवेश नहीं कर पाएंगे उनके लिए 5 लाख तक की कर दी गई है और कई सारी रियायतें इसके अंदर दी है। आयकर की मर्यादा के अंदर पहले एक घर का रेंट उनको बेनिफिट कराता था, अब 2 घरों को कर जो अलग अलग जगह पे नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया है। सीमा को भी 40,000 बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने का काम किया है। ढेर सारी रियायतें मध्यम वर्ग को लिए भी ये सरकार लेकर आई है और मुझे आनंद है इतना सारा करने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने में सरकार सफल हुई है। सिर्फ 3.4% का बजट घाटे का लक्ष्य रखकर इस सरकार ने ये सारी रियायतें दी है। इसका मतलब राज्य की, देश की इनकम बढ़ाने में, आवक को बढ़ाने में सरकार को सफलता मिली है। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सभी 4 कॉर्नर्स को मेंटेन किया गया है और मैं मानता हूं इसके कारण महंगाई की दर जो अब तक 5 साल में कंट्रोल रखने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है, अगले साल भी महंगाई की दर नियंत्रित होगी। मित्रों, ये बजट एक सर्वांगीण बजट है। ये बजट विकास को गति देने वाला बजट है। ये बजट रोजगारी का सृजन करने वाला बजट है। ये बजट लघु उद्योग को उत्तेजन देने वाला बजट है
क्योंकि उनकी बैंक के लोन में भी 2% ब्याज की छूट कर दी, रियायत दी गई है। पहले 40 लाख तक की रजिस्ट्रेशन जीएसटी को 40 लाख के कारोबार तक फ्री कर दिया गया और अब उनकी लोन में 2% की रियायत देकर लघु उद्योगों को भी बहुत फायदा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है, जो देश में रोजगारी का सृजन करेगा, देश के किसान को इनपुट्स के समय जब उसको चाहिए तब मदद देकर इसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा, देश की गौ माता को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए कामधेनु आयोग अपनी तरह से काम करेगा। घुमंती जातियों के लिए भी एक अलग आयोग बनाया गया है, मछुआरों के लिए भी एक प्रकार से उनकी विकास को सरकार ने प्रायोरिटी देने का काम किया है। समाज के हर वर्ग को बजट के अंदर समाहित कर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखने का काम सरकार ने किया है। इस बजट का मैं पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और इस बजट के आधार पर देश के विकास को जो प्रधानमंत्री तो आ साथे ज एक महत्वपूर्ण समाचार मळी रह्या छे। आज बजेट रजू थयुं छे, आ साथे ज सोशल मीडिया पर पीयूष गोयल ट्रेंड थई रह्या छे। पीयूष गोयले आज बजेट रजू कर्युं छे। कार्यकारी नाણામંત્રી तरीके તેમણે આજે જે બજેટ રજૂ કર્યું છે ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર લોકો આ પ્રકારની ટ્વીટ્સ અને પોસ્ટ કરી રહ્યા છે। તેમણે જે ટ્રેન્ડમાં ચાલી રહ્યું છે કે લોકો મહેન્દ્રસિંહ ધોની સાથે સરખામણી કરી રહ્યા છે પીયુષ ગોયલને અને કહી રહ્યા છે કે છેલ્લા બોલે પીયુષ ગોયલે સિક્સર મારી છે। તો આ પ્રકારના પોસ્ટ, આ પ્રકારની ટ્વીટ્સ હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રેન્ડ થઈ રહી છે। તો આ અંગે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સુનિલ કેશવાની અને મેહુલ જોશી, જે મનીષ જોશી માફ કરશો, બંને ટેક્સ એડવોકેટ્સ છે અને ટેક્સ એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા છે। જી સુનિલભાઈ, પહેલા હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે આઈટી રિફંડની પ્રક્રિયા છે તે સરળ બનાવવામાં આવી છે અને જે પ્રકારે કહેવામાં આવ્યું છે કે 24 કલાકમાં હવે આઈટી રિફંડ થઈ જશે અને તેના માટે કચેરીએ નહીં જવું પડે, તો આપને શું લાગે છે કે તેનાથી કઈ રીતે સીધો ફાયદો થશે? આવકવેરામાં આ એક ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ ઘણા વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે કે જેમાં રિટર્ન ફાઇલિંગથી લઈને રિટર્ન પ્રોસેસિંગથી લઈને સ્ક્રુટિની થાય તો બી બધું ઈ અસેસમેન્ટ થાય છે। એટલે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 2 years એમણે એવું કીધું છે કે ભાઈ 24 કલાકની અંદર તમારું રિટર્ન પ્રોસેસ થશે અને તમને રિફંડ પણ મળી જશે। એક બીજી મહત્વની એમણે જે ડેટા શેર કર્યો છે કે ભાઈ 99.54% રિટર્નો જે છે કરદાતાએ જે રીતે ફાઇલ કર્યા છે એ જ રીતે એક્સેપ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે અને એમને સ્ક્રુટિનીમાં સિલેક્ટ કરવામાં નથી આવ્યા। આ બધું જે પ્રોસેસ છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ લોકો સિમ્પ્લિફાઈડ, કમ્પ્લાયન્સ બેઝડ, ફેસલેસ જે તરફ આવકવેરાની ડિપાર્ટમેન્ટ જઈ રહી છે તે બહુ આવકારદાયક છે। જી જી મનીષભાઈ, અત્યારે જે પ્રકારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ઇન્ટરિમ બજેટમાં કે 5 લાખ સુધીની જે આવક મર્યાદા છે તેને કરમાંથી મુક્તિ મળશે, ટેક્સમાંથી છૂટ મળશે, તો ખરેખર શું આ સીમા છે તેના વિશે થોડો ફૂટ પાડશો? 5 લાખની જે લિમિટ જે છે, બેઝિક લિમિટ તો 2.5 લાખ રૂપિયા જ છે। જી, સેક્શન 87 એમાં આ રિલીફ આપવામાં આવી છે। જો તમારી ઇન્કમ 5 લાખથી ઉપર જાય તો તમને તો 2.5 લાખના સ્લેબમાં જ તમે આવશો। એટલે આ જે 5 લાખની જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે એ બેઝિકલી લિમિટ તો તમે 2.5 લાખ રૂપિયાથી મારીને જ ચાલજો। 5 લાખની ઉપરની ઇન્કમવાળાને બેઝિકલી આમાં કોઈ ફાયદો થવાનો નથી। જેની નીચે 5 લાખની નીચે પહેલાં જે 50,000 હતી, 2.5 પ્લસ 50 3 લાખ થતી હતી, એ હવે 2.5 પ્લસ 2.5 એમ કરીને 5 લાખ થાય છે। એટલે ડબલ કરી દેવામાં આવી છે જે આવક મર્યાદા હતી। સેક્શનમાં રિબેટ આલવામાં આવ્યું છે, બેઝિક લિમિટ નથી વધારવામાં આવી। જે આપણે અટકાવવા માંગીશ, હાલ પિયુષ ગોયલ પત્રકાર પરિષદ કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ। We are indeed privileged and honored to have with us. We also extend a warm welcome to Union Minister of State for Finance and Shipping, Sri P. Radhakrishnan ji, Minister of State for Finance, Sri C. Pratap Shukla ji, Finance Secretary, Sri Ajay Narayan Jha ji, Secretary Economic Affairs, Sri Subhash Chandra Ghar ji, Secretary Revenue, Sri Ajay ji, Secretary Financial Services, Sri Rajiv Kumar ji, Secretary DIPAM, Sri Atul Chakravarti ji,
Chief Economic Advisor Dr. Krishnamurthy Subramanian. Friends, first Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, we'll take some questions. I presume that you have kept your phones in switch off mode. Without further ado, may I... તો ટૂંક સમયમાં જ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી બજેટ અંગે સંબોધન કરશે. તમે કહો તો વધારે સારું હોય. વધારે પિયુષ ગુરુ પર પૂરું થાય પછી આપણે ચાલુ કરીએ. भारत सरकार का इस एनडीए की टेन्योर का पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ. एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीजें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए. लेकिन मैं समझता हूं कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है. माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग, उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार. जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार. और लगभग जो विषय आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा. ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो 2 नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लोग काम करते हैं, लेबर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए. देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है. अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है. शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमांत किसानों की रहती है. और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है. इसको हमने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और 3 किश्तों में जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में, उस उद्देश्य से
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है। इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपए प्रति किसान, 2 लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही। और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000